Assalamu alaikum, ninth class. We are going to start second chapter from your first term syllabus, basic concept of economics. The main topic of this chapter is national income and its various concept, and it is necessary to describe the meaning of income before understanding the concept of national income. Okay, income is a reward or earnings that a person receives as a result of his mental or physical effort is called income. यानी आप जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं मेंटल या फिज़िकल, उसके अगेंस्ट आपको जो भी रिवार्ड दिया जाता है, जो आपकी अर्निंग होती है, वो आपकी इनकम कहलाती है. A nation or country earns its income with the help of four important resources, and these are called the factor of production. These factor of productions are land, labor, capital, and organization. Okay, and national income include payments made to all these factor of production in the form of rent, wages, interest, and profit. Now we are going to describe national income. Professor Alfred Marshall is a famous economist. He described national income as the money value of all goods and services produced by four factor of production during a particular year is called national income. ओके यानी इन्हीं फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो कोई भी गुड्स और सर्विसेज आपकी कंट्री में एक साल के अरसे के दौरान में पैदा होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, उनका सम आपकी नेशनल इनकम कहलाती है. एक और डेफिनेशन भी नेशनल इनकम की है, थोड़ी सिंपल, कि द टोटल इनकम विच इज़ अर्नड बाय द इंडिविजुअल और द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम. कि ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड तमाम एक कंट्री के इंडिविजुअल जो कुछ भी गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, उसका सम आपकी नेशनल इनकम पे कहलाती है. पीपल ऑफ अ कंट्री यूज़ देयर नेचुरल एंड कैपिटल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स in the form of agriculture produce like the cereals, vegetable and fruits, minerals like the petroleum, iron and copper, etc., and the industrial output, for example the machinery, cement, sugar and all other industrial goods. And the services include the lawyers, doctor, accountants, teachers. ओके, तो ये जो आपकी गुड्स और सर्विसेज हैं, इन सब का सम जो कोई भी एक साल के अरसे के दौरान में किसी एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी. यानी जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो कुछ भी आपके मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, आप उनकी मनी वैल्यू काउंट कर लेते हो. फिर जो कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी मनी वैल्यू काउंट कर लेते हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही होती हैं, उनकी इनकम को कैलकुलेट कर लिया जाता है. यानी डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, अकाउंटेंट्स की, क्लरिकल स्टाफ की या टीचर्स की जो इनकम है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. फिर इस सब का सम जो है वो आपकी नेशनल इनकम कहलाती है, वो आपकी नेशनल इनकम बनती है. ओके गर्ल्स. Okay, next topic is various concept of national income. National income has further been classified into the following categories. These are gross domestic product, gross national product, net national product, and personal income and disposable personal income. Okay, now we explain all these terms shortly. First is gross domestic product. Gross domestic product or GDP, very important term or concept of economics. Gross domestic product measure the output by factor of production located in domestic economy, regardless who own the factors. Another definition is GDP is the total market value of all final goods and services produced within the country in 1 year. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपकी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है एक साल के अरसे के दौरान में, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में है या सर्विसेज की फॉर्म में है, उसका सम आपका जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है. ठीक है, अब इसमें कोई कंसर्न नहीं है कि ये
इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो जो चीज़ भी प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी डोमेस्टिकली लोग जो हैं आपके कंट्री के अपने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ फॉरेन कंट्री से आए हुए लोग या उनकी कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। जो कुछ भी आपकी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो आपके अपने कंट्री के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या दूसरी कंट्रीज़ के लोग आपकी कंट्री के अंदर आके प्रोड्यूस कर रहे हैं या इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई अगर किसी दूसरे मुल्क की कंपनी जो है वो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही है, ठीक है, उस कंपनी की जो भी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की जो फाइनल वैल्यू होगी या प्राइस होगी वो आपके जीडीपी के अंदर शामिल होगी, क्योंकि ये आपकी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो जो कुछ भी आपकी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे आपके अपने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या बाहर से आए हुए लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या आपका जीडीपी कहलाता है। ओके, next topic is gross national product. Okay, gross national product means the total market value of all final goods and services produced by the people of a country, whether within the geographical boundaries of a country or otherwise, in 1 year, is called gross national product. ठीक है, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये है कि आपकी कंट्री के लोग जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की फॉर्म में एक साल के अरसे के दौरान, चाहे वो अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं या वहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो आपका जीएनपी कहलाता है। ठीक है, कुछ आपके कंट्री के लोग फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हैं, वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उधर से जो वो इनकम गेन करते हैं, जो उनकी इनकम जनरेट होती है, जो वो अपने होमलैंड में रेमिट करते हैं यानी पीछे अपनी कंट्री की तरफ भेजते हैं, वो आपके जीएनपी के अंदर शामिल होती है। ओके, तो जो कुछ भी गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में एक साल के अरसे के दौरान में प्रोड्यूस होता है, चाहे आपकी कंट्री के लोग जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, चाहे वो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं या कंट्री के बाहर कर रहे हैं, वो आपका जीएनपी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जीडीपी और जीएनपी थोड़ी मिलती जुलती टर्म है, थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है इनका? द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी इज़ अ टर्म डिफरेंट फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट with respect to inclusion of services provided in other countries. In GNP, remittances or the services by person in foreign countries are included, whereas GDP excludes such portion of income and restrict itself to income earned by the people within the geographical limit of the कंट्री। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या पाया जाता है? इसके दरमियान में डिफरेंस ये है कि जीएनपी के अंदर हम वो तमाम पेमेंट्स या वो तमाम हम प्रोडक्ट्स जो हैं इंक्लूड करते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में हमारे कंट्री के लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जीडीपी जो है वो आपकी इनकम के इस पोर्शन को एक्सक्लूड कर देता है। यानी रेमिटेंसेस जो हैं, रेमिटेंसेस वो अमाउंट होती है जो बाहर से भेजी जाती है, दूर से भेजी जाती है। ठीक है, रेमिटेंसेस जो हैं आपके, वो आपके जीएनपी के अंदर इंक्लूड होते हैं, जबकि जीडीपी के अंदर में से ये एक्सक्लूड होते हैं। तो यही एक डिफरेंस जीएनपी और जीडीपी के दरमियान में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ नेट। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट. A number of plant, machinery, tools and equipment are used in manufacturing process to produce goods. These capital resources depreciate with the passage of time due to usage. Money is spent to keep them in perfect operating condition so that the production of goods is not disturbed. The amount spent for repair and maintenance of plant and machinery is called the capital consumption allowance or the depreciation allowance. यानी आपकी फैक्ट्रीज़ या आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप की मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं, कुछ टूल, कुछ इक्विपमेंट यूज़ हो रहा होता है प्रोडक्ट गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, इस्तेमाल की वजह से ये प्लांट, ये मशीनरी और ये इक्विपमेंट जो आपका है वो कभी ख़राब हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि उसमें को रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसकी रिपेयर के ऊपर, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर आपकी या उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर जो कुछ भी आपकी अमाउंट स्पेंड होती है उसको हम डेप्रिसिएशन अलाउंस कहते हैं या उसको कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस कहा जाता है। ठीक है, तो एक अमाउंट जो है वो स्पेयर या फिर एक साइड पे रखी जाती है कि जब कभी भी आपकी मशीनरी ख़राब हो जाए या आपको उसको रिप्लेस करना पड़े या ठीक करना पड़े तो उस अमाउंट से आप वो नई परचेज़ कर सको या आप उसकी रिपेयरमेंट करा सको, उसको रिपेयर करा सको। ओके, if we deduct this depreciation allowance, these are the expenses on maintenance of production and plant and machinery
फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वी कैन गेट द नेशनल प्रोडक्ट। ये डेप्रिसिएशन अलाउंस अगर हम अपने जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आपका एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगी। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्सनल इनकम। Personal income is aggregate of all incomes actually received by all the individual of a country during 1 year. Okay, it is a part of national income. ठीक है, and it is less than national income. ओके कि आपकी कंट्री में जितने भी इंडिविजुअल हैं वो जो कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं एक साल के अरसे के दौरान में जिनकी जितनी भी इनकम अर्न होगी वो आपकी पर्सनल इनकम कहलाएगी। पर्सनल इनकम नेशनल इनकम का ही एक पार्ट है, लेकिन ये नेशनल इनकम से कम होती है इसकी वैल्यू। और इसके अंदर आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं वो पर्सनल इनकम में इंक्लूड होती हैं, जबकि ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं नेशनल इनकम से। ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं क्या कि यानी आपको जो कोई भी इनकम बगैर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म किए आपको इनकम जनरेट हो जाती है उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। और अमूम इसमें आपकी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शामिल है, ओल्ड एज पेंशन शामिल है, एक रिलीफ एड शामिल है, ज़कात को भी हम ट्रांसफ़र पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं ये आपकी पर्सनल इनकम में इंक्लूड होंगी, जबकि ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डीपीआई। It is the income which is available with an individual after payment of all taxes such as income tax and property tax etc. ठीक है, a part of this disposable income is consumed and a part is saved। यानी जो इनकम आपको रिसीव होती है आपके हाथ में आती है वो आपकी टैक्स उसमें से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है, जो डायरेक्ट टैक्सेस होती हैं जिसमें आपका इनकम टैक्स या आपका प्रॉपर्टी टैक्स शामिल है। ठीक है, आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से ये इस टाइप के जो टैक्सेस होते हैं उनको डिडक्ट कर दिया जाए तो बाकी जो इनकम आपके पास आती है वो आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हो, उसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। उस इनकम का कुछ हिस्सा आप स्पेंड कर देते हैं अपनी नीड्स के ऊपर, अपनी कम्फर्ट्स के ऊपर, और उसका कुछ पार्ट जो है वो आपका सेव हो जाता है, आप उसको सेव कर लेते हैं। सो वी कैन एक्सप्रेस in form of equation as disposable personal income is equal to personal income minus the direct taxes। यानी जो भी आपकी पर्सनल इनकम है उसमें से अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग आपके पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम रह जाएगी। एक दूसरी इक्वेशन में भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज़ इक्वल टू पर्सनल कंजम्पशन प्लस पर्सनल सेविंग। यानी ये जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है इसका कुछ हिस्सा आप कंज्यूम कर लेते हो, स्पेंड कर देते हो, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपका सेव हो जाता है, और इन दोनों का सम जो है वो आपकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बनती है। ओके गर्ल्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।